Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Bless you, Jesus. Bless your holy name, Lord. Bless your holy name. Lord Jesus, bring everyone online. Lord, connect us together. That we pray for Africa today. That we pray for our nation, India, today, Lord. Hallelujah. We bless you. We praise you, praise you, praise you, praise you. बिशप जी, रमन जी, प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। अफ्रीका के अलग अलग नेशंस के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ललित जी, आइए प्रार्थना करें अफ्रीका के लिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। लेट अस प्रे फॉर दिस वंडरफुल कॉन्टिनेंट। ब्रदर अमरीश जी, लेट्स प्रे। ब्रदर रमन, ब्रदर बिशप जी, लेट्स प्रे फॉर अफ्रीका। हालेलुया. Hallelujah. Aditi ji and my brother from England, let's all join praying for Africa. Africa is a beautiful continent. Hallelujah. It has 54 plus 4. Rohit ji, let's pray. All pray for Africa. 54 plus 4 territories, 58 nations altogether. Let's pray in Africa for Egypt. Let's pray for Congo. Let's pray for Zambia. Let's pray for Zaire. Let's pray for Benin. Let's pray for Kenya. Let's pray for Ghana. Let's pray for Mali. Let's pray for Somalia, Sudan. Hallelujah. 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 Let's pray for Zaire. Let's pray for Zimbabwe, South Africa. Hallelujah. The eastern coast, the western coast of Africa, the Midwest Africa. Let's pray for these nations. Uganda and Ghana and Nigeria, Chad, Malawi. Let's pray for these nations. Morocco. Let's pray for Liberia. Let's pray for Libya. Let's pray for Chad, Sudan. Let's pray for these nations of Africa. Father, we lift up African continent before you. We pray for our brothers and sisters in Africa. Hallelujah. All join us, Brother Emmanuel Sohota. Join us all. Hallelujah. Brother Devinder, Brother Eric, and Jan from US. Let's all pray for Africa. Hallelujah. Beautiful continent. Hallelujah. Beautiful nations. Hallelujah. From Egypt till the southern tip of South Africa. Let's pray. Hallelujah. For Malawi, for Congo, for Zaire. Let's pray for Zimbabwe. Let's pray for Benin. Let's pray for Chad. Let's pray for Liberia, for Egypt. Hallelujah. For Sudan. Hallelujah. For Algeria, for Chad. Hallelujah. For Malawi. Hallelujah. Father, we commend Africa. From the top to the bottom, from the east to the west, Father, the entire African continent we bring before you. May your spirit move in Africa like never before. May you protect people from the vicious attack of this demonic plague that is stalking in the earth and killing many people. Hallelujah. Father, it will not succeed in Africa. You have already protected. There are many nations in Africa that you have already protected. You will have mercy on African continent, Father. Father, we identify with their sins. Father, we repent on their behalf in the name of Jesus for all the evil that mankind has done. Man doesn't need to know rocket science in order to understand why the plague has come upon the earth. It is pretty simple. Man's sin has unleashed the judgment upon the earth. The sin, the debauchery, the perversion, the licentiousness, man's defiance against God of heaven has unleashed the pit of hell upon the earth. Hallelujah. But Father, you are merciful. We pray that your mercy, that your favor, that your love, that your kindness, that you remember even when you are wroth in anger. प्रभु, जब तू क्रोध में भड़का होता है तब भी तू करुणा को स्मरण करता है. Even in your hot displeasure, you still remember your love and your kindness. So Father, we come before you because we know who you are. We know that you are love. We know that you are kind and merciful. So we pray for Africa, Father, that you will have mercy over Africa, over Nigeria, over Kenya, over Ghana, over Uganda, over Malawi, over Chad, over Congo, over Sudan, over Benin, over Liberia, over Zimbabwe, over Zaire, over South Africa. Father, you will have mercy. Have mercy. We lift up Africa before you. We all pray, Father. We all join our hearts and our spirits together and we lift up Africa.
May your spirit move in Africa like never. May you send your angels. Father, Father, we stand in the gap and pray. May you pardon the iniquity. May you pardon the sin. And Father, may you command this vicious demon that is ravaging human lives. May you say to this vicious demon, relent now. Hallelujah. And may this plague, this devastation cease. Thank you, Father. Loving Father, in Yeshua's name we bless you. तेरी महिमा करते हैं प्रभु। जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं और भी जो जुड़ेंगे प्रभु, एक एक के घराने पे, Father, over the houses of all these loved ones who are connected, over their loved ones, whether in the United States, in Canada, in Africa, in India, or any other part of the world, I pray for all these loved ones, Father. Father, I speak the blood of the Lamb over these loved ones, over their homes, over their houses, over their relatives, their loved ones, Father, that this plague shall not touch them. Father, I say in the name of Yahushua HaMashiach that this plague shall not touch these loved ones. You will protect them, Father. Protect them, Father. Father, I decree divine frequency around their homes, around their lives. I decree divine frequency that will cancel the radiation that 5G is causing. All the radiation that 5G is causing and killing the human genomes and creating poison in human DNA. Father, that will stop in Jesus' name. तेरे नाम की महिमा करते हैं यीशु मसीह. Hallelujah. Lord, as we look into your word, open your word to us. Teach us wisdom. We don't want to be religious Christian and just want to run on those tracks of celebrating Palm Sunday and Easter and Good Friday. No, Lord. We want to be your children. We want to be like Issachars who know the seasons and the timing and who long to catch the word for what you are speaking now, what you are doing now in the earth, Father. हम उसे जाने. प्रभु करुणा करें, दया करें, यीशु मसीह के जलाली नाम में. आमीन. हालेलुया. आप सब को जय मसीह की. आप सब जानते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य में अध्ययन कर रहे हैं और कल हम प्रकाशित वाक्य में अध्ययन कर रहे थे. वी वर in book of Revelation chapter number 2. 7 most important letters in the Bible are those that Jesus made his servant John write, and then he asked him to hand over the letters to the angels. Every letter was specifically addressed to a spirit being that was guarding a church. प्रभु ने कहा कि जो स्वर्गदूत कलीसिया के ऊपर है उसे ये चिट्ठी लिख. और यूहन्ना ये 7 अलौकिक चिट्ठियां लिखता है. और कल हम देख रहे थे कि परगमम की कलीसिया को जो चिट्ठी लिखवाई गई, परगमम की कलीसिया. हालेलुया. आप में से जितने मेरे साथ थे कल, आपको मालूम है परगमम की कलीसिया को, उसमें यीशु मसीह 2 खास बातें करते हैं. Jesus talked 2 things in the epistle to Pergamum. He said the teaching of the Nicolaitans, and he talked about the seat of Satan. निकलइयों की तालीम और शैतान का सिंहासन. हालेलुया. और यीशु मसीह यहाँ पे जो बातें कहते हैं बड़ी पारलौकिक बातें हैं. This is what Jesus says. यीशु मसीह कहते हैं, these are the words of him who has sharp double-edged sword coming out of his mouth. Sharp double-edged sword. I know where you live, where Satan has his throne. The place where they lived, Satan had his throne in that place. Yet you remain true to my name. Yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city where Satan lives. एंटिपास नाम का यीशु मसीह का एक चेला था जिसे डोमिशियन नाम के एक रोमन राजा ने, एक बहुत बड़ी केतली थी, उसके अंदर उबलता पानी था, उस केतली का ढक्कन खोल के बड़ी केतली के अंदर उसको डाल दिया गया और एंटिपास को हिस्ट्री बताती है मार दिया गया. और उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं किया. इतनी एक्सट्रीम परसिक्यूशन में प्रभु यीशु मसीह 2 बातें कहते हैं. 2 क्या कहते हैं? नेवरदलेस 14 वचन में, आई हैव फ्यू थिंग्स अगेंस्ट यू.
देर आर सम हु होल्ड टू द टीचिंग ऑफ बेलम। मैंने आपको बताया बिलाम की तालीम क्या थी, कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। 25 अध्याय में से, गिनती की पुस्तक में से मैंने आपको बताया 25 अध्याय के पहले वचन से अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं शिटीम नाम के इलाके में जब इसराइली आए, और ये घटना उस समय की है जब बलाक राजा ने, बलाक एक मोआबी राजा है, उसने इसराइल को श्राप देना चाहा। आपको मालूम मोआबी कौन है? मोआबी और अमोनी वो हैं जिनके ऊपर यहोवा की आशीष नहीं है। क्यों? क्योंकि वे लूत की बेटियों की उसके पिता के द्वारा पैदा हुई संतान है, और मोआबियों के अंदर शैतानी बीज था, डीएनए था, ईवल डीएनए। और मोआबी जो थे वो हमेशा इसराइलियों का विरोध करते थे, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े होते थे। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे, आप 22 अध्याय से पढ़ लीजिएगा गिनती की पुस्तक अपने घर में। बलाक राजा एक नबी को हायर करता, उसका नाम है बिलाम। ही हायर्स बेलम दैट ही मे कर्स इजराइल, एंड दिस प्रॉफिट हियर्स गॉड ऑफ इजराइल, बट ही इज अ वेरी एनग्मेटिक पर्सनालिटी. He is into the demonism and also hears God. And for the wages, for the lucre of money, silver and gold, वो इसराइल को श्राप देता है, लेकिन 7 नबूवतें करता है। वो 7 भविष्यवाणियों में से एक बार भी इसराइल को श्राप नहीं दे पाया। को मालूम क्यों? क्योंकि जिसे यहोवा ने ब्लेस किया है उसे शैतान श्राप नहीं दे सकता। तो बलाक उससे पूछता है कि कैसे इजराइल को श्राप दिया जाए, तो बिलाम उसे विधि बताता है। आपको मालूम सेटन कैन नॉट कर्स यू, सो हाउ विल कर्स कम अपॉन यू? इट इज यू हु विल कर्स योरसेल्फ। सेटन इज वेरी कनिंग, ही prowls like a roaring lion, seeking whom he may devour. He has strategies, he has sinister vicious strategies against you. वो ऐसे काम करता है। आपको मालूम, आप खुद ऐसा काम करते हो जिसके द्वारा श्राप के लिए डोर खुलता आपके जीवन में, तब आपके जीवन में श्राप आते हैं। तो उसने उनको बताया, 25 अध्याय गिनती की पुस्तक पढ़िएगा। शिटीम एक खास इलाका है, उसके विषय में बड़ी गहरी टीचिंग है। अगर आप, वो मुआबियों के कब्जे में वो इलाका है, और वहाँ पे एक बड़ी गहरी शिक्षा है। अगर आप इज़िकियल नबी की पुस्तक उसका 39 अध्याय 14-15 वचन पढ़ेंगे और 12 वचन पढ़ेंगे, जब गोग मगोग की लड़ाई होगी, तो परमेश्वर यहोवा कहता है ये ईस्ट साइड है डेड सी की, जो मुआबियों के पास है, जहाँ इसराइली लोगों ने डेरा डाला है। इसकी पुरानी हिस्ट्री है। परमेश्वर कहता है नबी के द्वारा, यहाँ पे मैं उनको लाशों को दबाने के लिए जगह दूंगा। और इज़िकियल 39-14 बताता है ये वो प्लेस है। यहाँ पे लिखा है स्पिरिट्स ऑफ द ट्रैवलर्स, द स्पिरिट्स ऑफ द ट्रैवलर रोम देयर। अधोलोक के अंदर दबी आत्माएं जब निकलती हैं तो इस पथ से घूमती हैं। स्पिरिट ऑफ द ट्रैवलर, वहां पे हिब्रू में वर्ड है ओब्त, और दूसरा वर्ड है इक्का इब्रिम। ओब्त, इक्का इब्रिम, ये वो रफाइमों की आत्मा है, नफलीमों की, जो उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में जल प्रलय से मारे गए। प्रभु कहता है जशाया इज़िकियल नबी की पुस्तक में, यहां पे उन्हें दबाया जाएगा, जहां पे ट्रैवल करती हैं बदरूएं। डेड सी के, मृतक सागर की ईस्टर्न साइड पे वो शैतानी जगह है, जिसके सामने माउंट नीबू है, नीबू पहाड़ दिखाई देता है। उस जगह, यहां पे मुआबियों ने, इस जगह एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर था। यहाँ पे बिलाम ने बोला कि अपनी औरतों को भेजो, उन्होंने अपनी औरतों को भेजा। और अगर आप ग्रीक वर्ड पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं 2 अध्याय में, यहाँ पे लिखा है नेवरदलेस आई हैव फ्यू थिंग्स अगेंस्ट यू, 14 वचन, देयर आर सम अमंग यू हू होल्ड टू द टीचिंग ऑफ बेलम, जो बिलाम की तालीम को जिनके अंदर है, हु टॉट बेलक टू एंटाइस, इसके एंटाइस के लिए, जिसने बलाक को ये बताया कि कैसे इजराइल को फंसाया जाए, उसके लिए ग्रीक वर्ड है स्कैंडलियोन। स्कैंडलियोन का मतलब षड्यंत्र बनाना, एक चालाक रणनीति बनाना, एक गंदी ऐसी प्लान बनाना कि परमेश्वर के लोगों को गिराया जाए। उसने एक प्लान बनाया। और आगे एक वर्ड है इपियोन, ग्रीक वर्ड है,
जिसका मतलब है उसने औरतों को भेजा और वो निवस्त्र होकर अपने वस्त्र उतार के उन्होंने इसराइली फौजियों को बदकारी के लिए उकसाया, और वो उठे अपनी जगह से, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को नीचे किया। उन्हें लगा तो हमें ये थोड़ा पाप कर लेना चाहिए, हम तो लड़ाई के मैदान में हैं, काफ़ी दिन घरों से बाहर हैं। वो वहाँ से निकले और निकल के स्त्रियों के पीछे गए। वो उन्हें अल्यूर करके, पाप के लिए विवश करके, अपना नंगा जिस्म दिखा के उस पहाड़ पे ले गई। और उस पहाड़ पे बाल पियोर नाम का एक देवता है। मैंने आपको कल भी बोला था, इसका अध्ययन कीजिएगा, बाल पियोर का मतलब क्या है। बाल पियोर एक अंडरवर्ल्ड का देवता है, हित्तियों का देवता था। बाइबल के अंदर सारे पैंथियन हैं, पुराने देवी देवताओं की आत्माएं हैं जो लड़ रही हैं परमेश्वर के लोगों से। हित्ती, फरीसी, जबूसी, गिरगिसाइट, कनानी, अमोरी, अमालकाइट और सुमेरियन, कसदी, अकेडियन और आपके ग्रीक और रोमन, ये सारे गॉड्स जो हैं पैंथियन। ये रफ़ाइम है जो वो गंदी आत्माएं नूह के जल प्रलय में मारी गईं, और ये वो पैंथियन है वो जो कौंसल उतरी यहोवा के साथ जब बाबुल का बुर्ज बन रहा था। यहोवा ने उस कौंसल के हवाले दुनिया की कौमों को कर दिया। 82 ज़बूर बताता है कि वो कौंसल करप्ट हो गई है, वो परमेश्वर का आदेश नहीं मान रही। उसके विषय में प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री में लिखता, प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार और वो दुष्ट शैतानी सेनाएं जो आकाशी मकामों में हैं, वो सब, ये सारे पैंथियन है शैतानी जो मिलके परमेश्वर के लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यू नो, देयर आर जाइगेंटिक फोर्सेस। यू स्टडी द वर्ल्ड, look into the world deeper. All those demon gods and goddesses, those Raphaims whom God slew during the flood, they didn't have spirit but their souls. And Nephilim and Gibrim and Eloi and those watchers that came along with God when Tower of Babel was being built, they became corrupt. And they perverted gods, just as Psalm 82 talks about that. And those 1/3 stars that dragon threw with his tail, all these demonic spirit beings are fighting against God's people. You see them in the Akkadian culture, in Sumerian culture, in Hittite culture, in Greek culture, Roman culture, in Babylonian culture, Egyptian culture. They come as different gods and goddesses, but they are those fallen angels and demon entities, and they are addressed by name in Hebrew and also in Greek. पढ़ें इसको, ढूंढें आप, तो वचन में लिखा है उसके संग उन्होंने अपने आप को जोड़ा, उसकी योक में, उसके जुए में जुट गए। तो मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं मेरे जुए में जुटो, क्योंकि मेरा जुआ हौला है, लाइट है, और तुम अपनी आत्मा में आराम पाओगे। शैतान के जुए में जुटने से आपका जीवन नरक में गर्क होगा। और उन्होंने क्या किया? यहाँ पे लिखा है, enticed Israel to sin so that they ate food sacrificed to the idols and committed sexual immorality. वो उस टेम्पल में गए, उस टेम्पल के अंदर जो वो शैतानी चीज़ें भेंट की चढ़ाई गई थी, ब्लड ऑफरिंग थी, वहाँ पे खून से लिबड़ी कच्चे मांस की ऑफरिंग थी, प्रसाद थे, वो उन्होंने देवताओं के सामने खाए। और उसके बाद सेक्सुअल परवर्जन की टेम्पल में। और क्या लिखा है वहाँ पे? 25 अध्याय में पढ़िएगा, उसके 6-7 वचन में लिखा है, गॉड बिकेम सो रॉथ, द एंगर ऑफ द लॉर्ड वॉज अराउज्ड टू सी दिस डिबॉचरी व्हेन दे took the yoke of Baal Peor. Baal Peor is a god of the underworld. It's a demonic entity. When they ate those things, they started receiving the DNA of Baal Peor, and the DNA of Baal Peor began to corrupt them on the inside. Plague broke out. All the words for plague, Hebrew में जो शब्द हैं plague के लिए पढ़ के देखिएगा, वो दुष्ट आत्माएं हैं. Those plagues are the words, and demons are behind them. They are viruses and they are all kind of vicious things. God became so wroth, इतना एंग्री हुआ परमेश्वर, 24,000 बंदा मर गया उस मरी से. फिर फिनस ने स्पीयर लिया और उस मुआबी औरत को तंबू के अंदर जाके, जो एक तंबू में थे, और पुरुष को, दोनों को भेज दिया, तब मरी रुकी जाके. हालेलुया. आपको मालूम ये जो परगमम है, परगमम के अंदर कितनी हिस्ट्री है. जो सिटी परगमम है, परगमम में क्या है?
यहाँ पे डायनासिस का एक टेम्पल है, वो फर्टिलिटी की गॉडेस है, और वहाँ पे बुल चढ़ाया जाता है। उस बुल के ब्लड में लोग अपने आप को डिप कर लेते थे, नहाते थे, और सोचते थे हमारे पाप धुल गए और हमें रेजरेक्शन मिली। और एस्क्लेपियस नाम के एक देवता का टेम्पल था, सांप देवता, मैंने आपको बताया, सांप जिसके दो मुंह हैं, जो मेडिकल साइंस का सिंबल है। जो मेडिकल साइंस का सिंबल है वो सराफ नहीं है जिसे मूसा ने उठाया, वो ये शैतान देवता है, एस्क्लेपियस नाम का देवता है। इसके टेम्पल के अंदर आज भी इसके श्राइन के अवशेष मिल जाएंगे आपको। टर्की, वेस्टर्न टर्की में है ये सब कुछ, जाके देख सकते हैं आप। वहाँ पे इस टेम्पल में डॉक्टर्स थे जो जड़ी बूटियों का ज्ञान जानते थे, और प्रीस्ट थे इस देवता की, भी दी जाती थी लोगों को चंगा करने के लिए। और लोग पूरी दुनिया, रोम के एम्परर भी वहाँ जाते थे, और वहाँ पे अंदर जब जाते थे स्टोन्स दिए जाते थे, लोगों को स्टोन दिए जाते थे, पत्थर दिए जाते थे, और डायनासिस के टेम्पल में जाके लोग प्रसाद खाते थे। और आपको मालूम वहां पे जूस देवता का टेम्पल था। जूस देवता, जूस कौन है? जिसे जुपिटर देवता बोला गया है। आपको मालूम यीशु मसीह ने जिस व्यक्ति में से बदरूएं निकाली, जो गदरीनिया के इलाके में था, वहां पे सूअर चर रहे थे, और बदरुओं ने विनती की कि हमें सूरों में जाने दो। यीशु मसीह देखिए कितने दयालु हैं। यीशु मसीह ने बदरुओं की दुआ भी सुन ली। बदरुओं का एक हेड था, और बदरुएं बोली, पहले बदरू का हेड बोला मेरा नाम लिजियन है, फिर सब बदरुएं बोली फॉर वी आर मैनी, और उन्होंने प्रार्थना की कि हमें सूरों में जाने दो। आपको मालूम क्यों? क्योंकि वो जो देवता जिसने उस बंदे को जकड़ा था, उसका टेम्पल था पास में ही, उसका नाम था जूस देवता, और वो जो भेड़ें थी उसी देवता को भेंट चढ़ानी थी, तो वो देवता उन भेड़ों के अंदर समा गया, जूस, हालेलुया। और डिमिट्रियस नाम की एक टेम्पल थी, जिसके आगे, डिमिट्रियस के टेम्पल के आगे कच्चा मांस खाया जाता था। तो ये बैकग्राउंड थी परगमम की। तो परगमम में विश्वासी थे सच्चे, जो ना तो वो पत्थर टेम्पल के लेते थे जाके, और ना वो भेंटें चढ़ी हुई खाते थे, अपने आप को शुद्ध रखते थे। इनमें से ज़्यादा वो लोग थे जिन्हें प्रभु ने इस गंदगी से निकाला था। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे लोग थे जो निकुलेइयों की तलीम, निकुलेई कौन था? निकुलस नाम का एक व्यक्ति, मैंने कल आपको बताया था, जो कि 7 डीकन में से एक था, उसकी शिक्षा को, दैट्स व्हाट जीसस सेज, the teaching of the Nicolaitans, and this word is very profound. It is in Greek as well as in Latin. Nicolaity, laity, people, Nico, rule over people, which is actually the doctrine of the Roman Catholic Church. आपको मालूम यहाँ पे लिखा है you dwell where the throne of Satan is. ये क्या है भाई और बहनों? ये जूस का टेम्पल था, द टेम्पल ऑफ जूस, उस देवता का जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। और 19वीं सदी तक ये वहीं था। इन 1908 दिस टेम्पल वॉज मूव्ड फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वेस्टर्न टर्की विच इज द सिटी इज नेम्ड परगमम, इट वॉज टेकन टू जर्मनी। और जर्मनी के राजा हिटलर, जर्मनी का जो चांसलर था हिटलर, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सारी स्ट्रेटजी इस देवता की सामर्थ्य के द्वारा बनाई। ये जो देवता है ये इसराइल विरोधी है, एंटी सेमाइट, अगेंस्ट द इजराइल, इसराइलियों के खिलाफ है। और उसने, आपको मालूम, 6 मिलियन जूइश लोगों को मारा उस देवता ने। और आप हैरान होंगे, बराक ओबामा ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2008 ऑल्सो चोज द सेम प्लेटफॉर्म। जितनी ग्लोबलिस्ट, सोशलिस्ट, एंटी सेमाइट ताकतें हैं वो इस सिंबल को यूज करती हैं। स्वास्तिक का जो निशान देखा आपने, स्वास्तिका का ये शैतानी सिंबल है। प्रभु ने कहा तेरे बीच में, तेरे अंदर उसका टेम्पल है। आपको मालूम यीशु मसीह को एक जगह फरीसी लोग यीशु मसीह पे
दोष लगाते हैं और कहते हैं कि तू बिएलज़ेबूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो यीशु मसीह ने कहा शैतान का राज्य टूट जाएगा अगर शैतान खुद अपनी ताकत से शैतानों को निकाले। बिएलज़ेबूब, बाल द प्रिंस, that's the original word, Baal the prince. Jesus identified Satan as Baal the prince, Beelzebub, who is the storm god. वो देवता है जो तूफान लेके आता है। मैंने आपको बताया था टाइफून कैसे पैदा हुआ, पिछले से पिछले, हाउ टाइफून वॉज बॉर्न। और ग्रीक रिलीजन में इसे ही जूस कहा जाता है। इसे ही यीशु मसीह संबोधित कर रहे हैं जब यीशु मसीह कह रहे हैं ये जूस जो है विच इज बिएलज़ेबूब एंड हु इज गॉड ऑफ स्टॉर्म। जीसस इज एड्रेसिंग द सेम एंड सेइंग ही हैज हिज थ्रोन अमंग यू। उसका थ्रोन है तुम्हारे बीच में। आपको मालूम, आप लेजेंड पढ़ते हो, लेजेंड ऑफ ओलंपियन एंड द जायंट, टाइटन एंड द जायंट्स। वो स्टोरी पढ़ते हैं आप ग्रीक मिथोलॉजी में, रोमन कल्चर में। वो ट्विस्ट की गई स्टोरीज हैं। वो असल में स्टोरी है कि यहोवा परमेश्वर नफालीमों को, गिबरीमों को 6 चैप्टर जेनेसिस में जो 200 वॉचर्स ने औरतों के संग कोहैबिट किया और नफलीमों की ब्रीड पैदा हुई। जब उन्होंने कोहैबिट किया, गिबरीम हिब्रू वर्ड जगा वर्जन दैट एंड इलोए अपनी पुस्तक में, इनोक बुक नंबर 1 is absolutely true and inspired, was part of the canon till 2nd century. Eventually the Roman Catholic Church took it off. It was there. The early church father and the apostles of Jesus understood these things very well. They had deep understanding of pantheons of different goddesses. They understood all those cultures and civilizations, the warfare real well, कि ये युद्ध मल युद्ध है। हालेलुया। तो अगर आप पढ़ेंगे ग्रीक मिथोलॉजी पढ़ेंगे तो वो बताते कि वो जो एक डीमन जो ब्लड से पैदा हुआ जिसे ओरेनस कहा गया है और जिसे क्रोनोस ने कास्ट्रेट कर दिया। ये सारी कहानियां मिलती हैं अलग अलग धर्मों में, संस्कृतियों, सभ्यताओं में। वहाँ पे नाम सिर्फ बदले हुए हैं, सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं। ये कहानी, सारी कहानियां हैं फ्लड की, जो यहोवा परमेश्वर ने भेजा और उस हाइब्रिड को। आपको मालूम, दानियल के दर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? जो राजा नबूकदनेस्सर ने मूर्ति देखी, वो मूर्ति दुनिया के साम्राज्यों को दिखाती है, बड़ी एम्पायर्स जो जगत में आएंगी। आखिरी जो एम्पायर है वो पाँव हैं और वो क्ले और आयरन, मिट्टी और लोहा से मिक्स है। हाइब्रिड है वो किंगडम, रिवाइव्ड रोम, फाइनल किंगडम जिसमें आप और मैं हैं। ये किंगडम हाइब्रिड होगी, हाइब्रिडाइजेशन। इस किंगडम का जो टेम्पल वो होगा ह्यूमन जीनोम्स को स्प्लिट करना, ह्यूमन डीएनए को ब्लेंड करना। आपको मालूम ये ऑलरेडी शुरू है। साइंस और विच क्राफ्ट दोनों का मिलाप हो चुका है। साइंटिस्ट विच क्राफ्ट, एल्केमी के साथ मिलके, सर्न के साइंटिस्ट डिमेंशंस बैरियर को तोड़ना चाहते हैं। हाइड्रोन कोलाइडर बना के वो गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे थे। एक्चुअली वो डिमेंशनल, दे नो दैट दिस इज अ मल्टी डिमेंशनल यूनिवर्स दैट गॉड क्रिएटेड। दे वांट टू ब्रेक द डिमेंशनल रियलिटी। दे वांट टू ब्रिंग दोज डीमंस हु आर इन द अदर डिमेंशन इनटू दिस अर्थ। वो उस डिमेंशन को, नेगेटिव डिमेंशन को, जिसके अंदर एबेडोन है, अपोलियन है, उसको खोलना चाहते हैं। वी आर इन द एंड टाइम्स। तो मालूम कैस्पर Cas9 एक टेक्नोलॉजी है, पूरे वर्ल्ड में आपको मिलती है। इट स्टार्टेड इन द यूएस। इट्स अ टेक्नोलॉजी विद विच यू कैन री एडिट योर जीनोम्स। यू कैन चेंज द इंफॉर्मेशन इन योर DNA. You know cyborgs, partly they put computer chips in human brain and they enhance humanity. बंदे को बेटर कर रहे हैं, इंसान से सैकड़ों गुना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं साइबॉर्ग।
किमरास का अध्ययन कीजिएगा। ह्यूमन डीएनए को ब्लेंड किया एनिमल डीएनए के साथ, किमरास, ट्रांसह्यूमनिज्म, ये सब आपकी आंखों के आगे सब चीजें घट रही हैं। वचन में लिखा है व्यवस्था सार 22 के 8-9 में, परमेश्वर ने जब पृथ्वी की मिरास को बांटा तब यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, वो जो कौंसल उसके साथ आई 70 की कौंसल थी, यहोवा ने पृथ्वी की कौमें उनके हवाले कर दी। 70 जेनेटिक पूल्स हम उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय में पाते हैं। यहोवा ने उन वॉचर के हवाले कर दिया दुनिया को, और उनके लिए लिखा बिनाए एलोहीम, हिब्रू में, हिब्रू टेक्स्ट में, गॉड अलॉटेड देम इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू बिनाए एलोहीम। और वचन में क्या लिखा है कि वो करप्ट हो गए। साम 82 पढ़िएगा। वो बिनाए एलोहीम जो अलग अलग कौमों के ऊपर राज्य कर रहे हैं, जिनको परमेश्वर ने चांसलर बनाया था, वो करप्ट हो गए साम 82 में। और प्रभु कहता है मैं तुम्हारे ऊपर जजमेंट लेके आऊंगा। इस दुनिया को, इस दुनिया के पैंथियन को समझना, ये बाइबल में से आप समझ सकते हैं भाई और बहनों। इसको खोजें, इसकी गहराई में जाएं, इसके नीचे जाएं। सेट्रन, जिसे शनि कहते हैं, सेट्रन, बेलहमान, क्रोनोस, ये सभी एक हैं। यही बेएल्ज़ेबुब है, यही जूस है। इन्हीं के नाम अलग अलग हैं अलग अलग संस्कृतियों में। इन आत्माओं के संग युद्ध है। पहली कलीसिया समझती थी कि ये ताकतों के साथ युद्ध है। तो प्रभु बताता है कि निकोलइयों की तलीम, वो एस्कलिपियन जो देवता है वो चंगाई का देवता है, वो चंगा करता है लोगों को। और प्रभु यीशु मसीह जो अपने कोड़ों की मार के द्वारा चंगा करता है, तो वो शक्तियां उसके खिलाफ खड़ी हुई, परमेश्वर के सच्चे पैगाम के खिलाफ। तो वचन में यहां पे क्या लिखा है कि कुछ तो निकोलइयों की शिक्षा के ऊपर चलते हैं। उन्होंने अपने यहां पे लिखा, लाइकवाइज यू ऑल्सो हैव दोज हु होल्ड टू द टीचिंग ऑफ द निकोलेटियन। द टीचिंग ऑफ निकोलेटियन इज सेक्सुअल परवर्जन, morality, live whatever way you live. They teach there is nothing such as sin. It is error of mind. There is nothing such as sin. You delight in yourself. Whatever gives you pleasure is good for you. There is no moral code. वो ये सिखाती हैं शैतानी शिक्षाएं। तो यहां पे लिखा है likewise teaching of the Nicolaitan, then Jesus says, repent. The word is continue to motivate pews. Keep on preaching motivational teaching. You are reaping the harvest of the wishy-washy gospel that you've been preaching. The pseudo-prosperity cult is on the ventilator. It's dying. God is sending a new move for the remnant. It is the proclamation purity and righteousness of God. You know what the kingdom is? The kingdom is righteousness. Righteousness, joy and peace in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. You preach side, just righteousness. Sinners of worst kind, and we couldn't have atoned ourselves. Our best works were like filthy rags in the eyes of God. So God, who is rich in mercy, his only begotten son Jesus on the cross, by virtue of his sinless life and his pure blood, now since we believed in him, we have been made righteous. Imputed righteousness has been given unto us. You just preached about the imputed righteousness. You did not preach, because the imputed righteousness has, therefore you must live a righteous life. ये प्रचार कि धर्मी जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, प्रॉस्पेरिटी, मनी, फेम, नेम एंड क्लेम, एनीथिंग। इसलिए परमेश्वर का दंड आया पृथ्वी पे। बड़ी बरकत नहीं चलेगी, झूठी भविष्यवाणियां टोटके नहीं चलेंगे, उसके चरणों पे आना पड़ेगा। लिखा है repent therefore, otherwise I will come to you and I will fight against them with the sword of my mouth. प्रभु निकोलइयों की शिक्षा के खिलाफ है, निकोलइयों के खिलाफ नहीं है। प्रभु कहता है मैं आऊंगा और आके तेरे संग लड़ाई करूंगा। क्या चाहते हैं आप? प्रभु आके आपके संग लड़ाई करे, या प्रभु आके आपको अपनी जलाली दुल्हन में शामिल करके उठा के ले जाए, उड़ा के ले जाए?
Look, verse number 17. Whoever has ear, let him hear what the Spirit says to the churches. This word of Jesus was not only for that first century church. This word of Jesus is for today's church. ईसिया के लिए ये वचन है, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु क्या कहते हैं, सुनिए अब गौर से। आई टू द वन हु इज विक्टोरियस। तीन बातें प्रभु बोलते हैं, जो जय पाए और जो फल पैदा करे और जो वफादार रहे। तीन बातें। ही हु इज विक्टोरियस, ही हु इज ओवर फ्रूट, and he who is faithful unto me. These three category people will receive coronation from the Lord, rewards from the Lord. He will reward them. और प्रभु क्या कहता है यहाँ पे, the one who is victorious I will give some of the hidden manna. मैं उससे, आपको मालूम क्यों कहते हैं प्रभु यीशु गुप्त मन्ना खाने के लिए दूंगा? क्योंकि स्किलिपियस के टेम्पल में, डिमेट्रियस के टेम्पल में, और जिसे इनाना भी बोलते हैं उसके टेम्पल में, और डायनोसिस के टेम्पल में, और जूस के टेम्पल में लोग जाते हैं, वहाँ प्रसाद मिलता खाने के लिए। वहाँ पे रॉ मीट, ब्लड स्टेन्ड ऑफरिंग मिलती खाने के, जो पोल्यूट है डीएनए को। यीशु मसीह कहता है मेरे पास आ, मैं तुझे दूंगा खाने के लिए गुप्त मन्ना। असली प्रसाद है गुप्त मन्ना। यीशु मसीह प्रसाद देते हैं। यीशु मसीह ने महाप्रसाद दिया, अपनी देह दी खाने के लिए और अपना लहू दिया पीने के लिए। जब और उसका लहू पिया, फिर संसार की गंदगी नहीं खा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे, पाप में प्रभु भोज लेंगे, तो रोग आएंगे, बीमारियां आएंगी, और प्रभु वचन में लिखा है सो भी जाओगे, प्रीमैच्योरली। इफ यू डिसऑनर द बॉडी ऑफ जीसस एंड द ब्लड ऑफ, प्रभु कहते हैं मैं दूंगा प्रसाद गुप्त मन्ना खाने के लिए। आई विल गिव दैट पर्सन ए वाइट स्टोन विद अ न्यू नेम रिटन ऑन इट, ओनली ऑन इट, नोन ओनली टू द वन हु रिसीव्स इट। कहता मैं वो पत्थर दूंगा, बढ़िया सफेद पत्थर, जिसके ऊपर तेरा नाम लिखा होगा और केवल तुझे पता होगा उस नाम का। और स्टोन दिए जाते थे, पेबल्स, इन टेम्पल में लोग जब जाते थे पत्थर देते थे उनको एज अ गिफ्ट। दे यूज टू चेरिश, ऐसे गले में डालते थे हार बना के लोग, देवताओं के पत्थर। प्रभु कहता मैं दूंगा तुझे वाइट स्टोन, स्वर्गीय, और उस पर तेरा नाम इंस्क्राइब होगा, और मैं दूंगा तुझे प्रसाद खाने के लिए। परगमम वो कलीसिया है जिसने संसार से शादी की है, मैरिड टू द वर्ल्ड एंड मैरिड टू सेटन। हर तरह की गंदगी के काम करने वाली कलीसिया। आपको ये कलीसिया नहीं बनना, आपको संसार से अपने आप को अलग करना है। यू मस्ट सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द सिंफुल वर्ल्ड, एंड यू मस्ट कॉन्सेक्रेट योर सेल्फ, एंड यू मस्ट लिव फॉर जीसस। You must shine the light of Jesus. Then he will radiate his glory in your faces. Then he will mark you with aleph and tav hair, and nothing shall touch you. तब आप कहें कोई मुझे छू नहीं सकता। यहोवा के बड़े बड़े काम देखो, चुपचाप खड़े रहो, तब ये काम होगा अगर आप अपना जीवन प्रभु को समर्पण करेंगे। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, हम फिर से Father, we again pray for African continent. We lift up all the nations of Africa before you. We pray for our brothers and sisters who are going through tough times. Father, who may be facing many problems, many issues in their life, many shortages of all kind. We pray, Father, that you will cause breakthrough. You will supply their needs. You will move miraculously among them, Father, by the power of your Spirit. Father, you will protect Africa from this vicious virus, and they who belong to you, it will not touch them. And Father, you never allow any adversity go to waste. You will use this human crisis as an opportunity to spread the fragrance of the knowledge of the Lord Jesus Christ. So prepare your church. Father, inundate your servants with fresh power from on high. And Father, put your word and fresh anointing upon them, that they may carry your word, the prophetic message, to the ends of the earth. हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, तुझे जलाल देते हैं। यीशु को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। शाम को हम 6 o'clock फिर इकट्ठे होंगे, प्रार्थना करेंगे, और थोड़े समय हम फिर प्रभु के वचन पे मनन करेंगे।
अगली कलीसिया के ऊपर कुछ वचन सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपको आशीष दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ आप में से बहुतेरों ने ये सीखा नहीं होगा कुछ पहले, जो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर खोल रहे हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दें। अगर आप में से कोई बीज बोना, मैं बीज के लिए कुछ बात नहीं करना चाहता। बहुत पादरियों ने बीज बोना बीज बोना बीज बोना करके लोगों का बैंड बजा दिया है। मैं ये बात नहीं ज़्यादा करनी चाहता, पर अगर पवित्र आत्मा आपसे कहे कि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। हम कुछ पासवानों की और कुछ अपने कमज़ोर विश्वासियों की सहायता के लिए उन्हीं के अकाउंट में उस सीड को भेज देंगे। आप मुझे बताइएगा ज़रूर। प्रभु आप सबको आशीष दे। 6 बजे हम फिर मिलेंगे। प्लीज़ टेल अदर्स एंड ऑल जॉइन एट 6 PM। यीशु मसीह ज़िंदा है। हालेलुया। स्वर्ग के सर्वोच्च सिंहासन पे बैठा है और यीशु मसीह के हाथों में पूरा नियंत्रण है। घबराइए नहीं, वही हमारी आशा और हमारी चट्टान है। जीसस ब्लेस यू ऑल। आमेन।